Good morning students. Today we are continuing our chapter 5, that is basic geometrical ideas. Students, we have done our 3 exercises. Now we are going to start our exercise 5.4, but before that we are doing some basic topics regarding this exercise. Yes, our topic is triangle. So let us define that what is triangle. A triangle is a simple closed polygon which is made up of 3 line segments. A triangle has 3 sides, 3 vertices and 3 angles. A triangle is denoted by the Greek letter delta. Triangle ABC can be written as triangle ABC, triangle BCA or triangle CAB. In a triangle ABC, there are 3 parts. Interior region where the points lie inside the region enclosed by a triangle. The interior points are P and S. On the sides where the points lie on the sides of the triangle. On the sides are R and T, and exterior region where the points lie outside the region enclosed by a triangle. Exterior point is Q in the given figure. The interior of triangle ABC, together with the triangle ABC itself, is called the triangular region, ABC. In triangle ABC, line segments AB, BC and CA form the triangle. These 3 line segments are called sides of the triangle ABC. A vertex of a triangle is a point where any 2 sides meet. In triangle ABC, the sides AB and AC meet at point A. Therefore, A is the vertex of the triangle ABC. Vertex B is a point where the sides BC and AB meet, and vertex C is a point where sides AC and BC meet. Thus, ABC are called the 3 vertices of triangle ABC. Every triangle has 3 angles. In the triangle ABC, its 3 interior angles are angle BAC, angle ABC, and angle ACB. Angle BAC can also be written as angle A, angle ABC as angle B, and angle ACB as angle C. All these represent as interior angles of the triangle ABC. Yes students, a triangle is a closed figure बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स. ट्रायंगल एक ऐसी प्लेन फिगर है विच यू कैन ड्रॉ ऑन अ प्लेन एंड इट इज ऑल्सो क्लोज्ड एंड बाउंडेड बाय मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स. 3 लाइन सेगमेंट. तो सी हियर इज एग्जांपल ऑफ अ ट्रायंगल. यस, it is a triangle ABC. Students, when you write a triangle, you have to put this symbol before the triangle. देखिए, this is the symbol of a triangle. Okay, in Greek language it is called delta. It is called delta. But आपको कोई भी triangle कभी show करनी है, जैसे आपको याद है आप angle का sign क्या use करते थे? This one. Now triangle के लिए आप क्या symbol use करेंगे? This. Okay. तो this is triangle ABC. You can also write this triangle BAC. Triangle में आप इन लेटर्स को आगे पीछे कर सकते हैं. CBA. ओके, किसी भी तरीके से आप इस ट्रायंगल का नाम लिख सकते हैं. यस, दिस इज ट्रायंगल ABC. इट हैज 3 साइड्स. साइड्स आर AB. यस, दिस इज AB, BC and AC. These are 3 sides, AB, BC and CA. AB, BC, CA and 3 sides. Now there are 3 vertices. What I have told you vertices? 3 corners. Okay, where 2 sides meet. So A, B, C are the vertices of triangle. Then how many vertices of a triangle? 3 vertices are there. Okay, now what about angles? देखिए, one angle is here, other angle is here and
another angle is here. Okay, what is angle? Two arms, one common vertex. So this is angle. तो 3 angles are there. इसका नेम क्या होगा इस एंगल का? एंगल A. और इसका एक और नेम भी हो सकता है एंगल BAC. वर्टेक्स को बीच में रखना है. ओके, अनदर एंगल, एंगल B, एंड थर्ड एंगल, एंगल C. So 3 vertices and 3 angles in a triangle. Okay students, now this is the interior part of a triangle, this is the exterior portion of a triangle, and this is the boundary of triangle. Okay, P point is in the interior of triangle. जो P point है वो कहाँ है? Interior. X point is in the exterior. X point is in the exterior of triangle and M point is on the triangle. Okay, ये टॉपिक हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं. Yes students, इंक्लूडिंग द इंटीरियर पोर्शन और द बाउंड्री, इन दोनों को मिला के क्या बोला जाता है? इंक्लूडिंग द इंटीरियर पोर्शन और बाउंड्री को मिला के क्या बोला जाता है? ट्रायंगुलर रीजन. ओके, ठीक है. ट्रायंगुलर रीजन हम किस किस को मिला के बोलते हैं? इंटीरियर पोर्शन को और बाउंड्री को. यस स्टूडेंट, नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर एक्सरसाइज 5.4. Yes, what is the first question in 5.4? The number of parts in a triangle is. ट्रायंगल में कितने पार्ट्स होते हैं? तो देखिए स्टूडेंट, 3 साइड्स होती हैं ट्रायंगल की एंड 3 एंगल्स होते हैं. दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल के 6 पार्ट्स होते हैं, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स. ओके, अकॉर्डिंग टू द ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड on the basis of sides and angles, we can say that there are 6 parts in a triangle. Yes, second part, in triangle PQR, PQ is equals to 3x, QR is equals to 4x and PR is equals to 5x. देखिए इस ट्राइंगल में PQR में 3 साइड्स दे रखी हैं जिनकी वैल्यू 3x, 4x एंड 5x है. एंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 72 सेंटीमीटर. और इस ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल साइड्स, वो 72 दे रखा है. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? ओके, यस, व्हाट विल यू डू हेयर? यू विल डू PQ प्लस QR प्लस PR, बिकॉज सम ऑफ ऑल साइड्स, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स. ओके, PQ plus QR plus PR. What you will write? Perimeter of triangle. Perimeter of triangle. ये MCQ है, आपको बुक में ही मार्क करना है. Perimeter of triangle PQR. Okay, sum of all sides PQ. Yes, PQ कितना दे रखा है स्टूडेंट्स? PQ की वैल्यू आपको दे रखी है. PQ is equals to 3x, QR is equals to 4x and PR is equals to 5x. Okay, and what is perimeter here? Perimeter is 72. Okay, now add these 4x plus 3x, 7x, 7x plus 5x, 12x is equals to 72. And now multiply 12 और x किस में है? मल्टीप्लाई में. तो 12 इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12 1 जा 12, 12 6 जा 72. तो वैल्यू ऑफ x is 6. So the answer is 6 centimeter. Okay. Now question number 2. Yes, in question number 2, yes student, question number 2, ABC is a triangle. Yes, first part, side opposite to angle B. आपको उस साइड का नेम लिखना है जो एंगल B के ऑपोजिट है. तो see in this triangle, this is angle B. Okay, तो स्टूडेंट एंगल बी के अपोजिट मतलब उसके सामने वाली, उसके सामने वाली, ये ना ये वाली ना ये वाली, उसके सामने अपोजिट. तो AC जो है वो एंगल बी के क्या है? अपोजिट. तो फर्स्ट पार्ट में AC. ओके, नाउ सेकंड पार्ट, एंगल अपोजिट टू साइड BC. अब आपसे क्या पूछा है? उस एंगल का नाम बताइए जो BC के अपोजिट है, साइड BC. देखिए BC इज अ साइड, इसके ऑपोजिट एंगल. तो देखिए चाहे मैं साइड के ऑपोजिट एंगल पूछूं चाहे एंगल के ऑपोजिट साइड पूछूं, आप दोनों ही बता सकते हैं. देखिए
BC इज अ साइड, इसके ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा, इसके सामने वाला। तो BC के सामने कौन सा एंगल है, एंगल A। तो सेकंड पार्ट एंगल A। ओके, अगर मैं आपसे पूछती हूँ एंगल C के ऑपोजिट साइड, तो C के सामने वाली AB। और अगर मैं पूछूं आपसे AC के अपोजिट एंगल, तो AC के अपोजिट एंगल कौन सा होगा, एंगल B। ओके, थर्ड पार्ट साइड अपोजिट टू वर्टेक्स A। तो दिस इज वर्टेक्स A, तो इसके अपोजिट साइड आप खुद लिखेंगे वर्टेक्स अपोजिट टू साइड AB। AB के अपोजिट वर्टेक्स कौन सा होगा, तो वर्टेक्स कौन सा है इसके अपोजिट, C। तो देखिए वर्टेक्स में आप सिंपल C लिखेंगे और एंगल पूछे तो आगे एंगल का साइन लगा देंगे। ओके स्टूडेंट, yes, now question number 3rd, in this figure name the points which are on triangle LMN। तो इस तरह के क्वेश्चन आप बहुत कर चुके हैं स्टूडेंट्स। LMN ट्राइंगल के ऊपर जो जो पॉइंट्स हैं उनके नेम लिखने हैं, तो यू विल डू योरसेल्फ। सेकंड पार्ट इन द एक्सटीरियर, इसके बाहर जो है जैसे कि W इसके बाहर है वो आपको लिखना है। थर्ड इन द इंटीरियर, जो पॉइंट इसके अंदर है, तो इसके अंदर जैसे कि O पॉइंट है, इसको आप खुद करेंगे। यस, फोर्थ क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3rd मिस हो गया। इसमें भी आपको फिगर गिवन है, ट्रायंगल गिवन है। फर्स्ट में आपको बताना है द पॉइंट्स विच लाई इन द इंटीरियर, जो अंदर है उन पॉइंट्स के नेम लिखने हैं। सेकंड, द पॉइंट्स विच लाई इन एक्सटीरियर, जो बाहर है उनके नेम लिखने हैं। थर्ड, द पॉइंट्स विच लाई ऑन, जो इसके ऊपर हैं तो उनके नेम लिखना है। ओके स्टूडेंट, जैसे ट्रायंगल ABC में A पॉइंट ABC के ऊपर है। यस, क्वेश्चन नंबर 5th, क्योंकि 4th हमने अभी डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 5th में आपको एक फिगर गिवन है, आपको क्या करना है, नेम फर्स्ट पार्ट, नेम ऑल द ट्राइंगल्स। स्टूडेंट, इस फिगर में आपको जितनी भी ट्राइंगल्स दिख रही हैं उन सभी के नेम आपको लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, देखिए ये वाली एक ट्राइंगल है PQT, तो आपको लिखना है ट्राइंगल PQT। ओके, सेकेंड, आपको कौन सी दिख रही है, ये बीच वाली ट्रायंगल, फिर आपको कौन सी दिख रही है, ये वाली ट्रायंगल। इन सब के नाम आपको इसी तरीके से लिखने हैं। 3 ट्रायंगल्स ही होगी, उसके बाद आप इस वाली को यूज कर सकते हैं, यस दिस। उसके बाद ये वाली ट्रायंगल हो सकती है। ओके स्टूडेंट, फिर एक बिग ट्रायंगल भी हो सकती है। तो इस तरह से आप सभी ट्रायंगल्स के नाम लिखेंगे। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट आपको बाकी के खुद लिखने हैं, ठीक है। यस, सेकेंड पार्ट ऑल द एंगल्स, इसके अंदर एंगल्स कौन कौन से हैं। देखिए स्टूडेंट, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है। ओके, एक एंगल ये है, जहां भी आपको कॉर्नर पॉइंट दिखे वहां एंगल बनते हैं। एक एंगल यहाँ पे बन रहा है, एक एंगल यहाँ है और एक एंगल यहाँ है। ओके, एक ये कंप्लीट एंगल भी बन रहा है। तो इस तरह से आप मार्क कर लीजिए, आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। यस, उसके बाद आप यहाँ से यहाँ तक का भी एंगल बता सकते हैं और आप यहाँ से यहाँ तक का भी एंगल बता सकते हैं। तो इस तरीके से आप इनके नेम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ से यहाँ तक का एंगल बनाना है, ठीक है। तो अभी देखिए V बनना चाहिए। V किसने बनाया है, एंगल PTR। ओके, इसका नेम कैसे देंगे, एंगल PTR। अगर आपको ये वाला एंगल लेना है तो ये V देखिए कैसे बन रहा है, एंगल QTS। वर्टेक्स को बीच में रखिए, एंगल QTS। इस तरह से करके फिर आप इन छोटे छोटे 3 ट्राइंगल्स एंगल्स का भी नाम देंगे। एंगल, ये देखिए इसको किसने बनाया, इसने, V बनना चाहिए, तो एंगल PTQ। ओके, एंगल PTQ। इस तरह से करके आप, इसका नाम क्या है, इसको आप सिर्फ एंगल P भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके फर्दर कोई डिवीजन नहीं है, बीच में कोई लाइन नहीं है, तो इसको आप एज इट इज बोल सकते हैं एंगल P। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट आप सभी एंगल्स के नेम लिखेंगे। यस, थर्ड पार्ट ऑल द लाइन सेगमेंट, नेम ऑल द लाइन सेगमेंट्स। देखिए लाइन सेगमेंट्स क्या होता है, द जॉइनिंग ऑफ 2 एंड पॉइंट्स, ठीक है। तो आपको जहां भी लाइन सेगमेंट दिख रही है आप लिख दीजिए। देखिए PQ भी एक छोटी सी लाइन सेगमेंट है, QR है, RS है, इस तरह से लाइन सेगमेंट है। तो इनके आप नेम लिखेंगे कैसे, सिंबल क्या लगाएंगे, PQ इज अ लाइन सेगमेंट, इस तरह से QR इज अ लाइन सेगमेंट। ओके, तो इस तरीके से आप सारी लाइन सेगमेंट्स खुद लिखेंगे। नाउ फोर्थ पार्ट, द नेम द ट्राइंगल्स विच हैव एंगल S एज कॉमन। ऐसी ट्राइंगल बताइए जिसमें एंगल, वो सभी ट्राइंगल्स बताइए जिनमें एंगल S आता है, या फिर ऐसी ट्राइंगल जिनमें एंगल S कॉमन है, जो तीनों में, चारों में, जितनी भी है उनमें आता हो।
देखिए इस फिगर में एंगल एस किस किस ट्राइंगल में आ रहा है, एक तो देखिए ये वाली ट्राइंगल में आ रहा है, ओके, ट्राइंगल आर एस टी, ओके। अब आप बताइए इस वाली ट्राइंगल में भी तो ये एंगल आ रहा है, तो क्यू एस टी, ओके, और एक कंप्लीट ट्राइंगल में भी ये एंगल आ रहा है, कंप्लीट का नाम क्या है, ट्राइंगल पी एस टी, ओके। तो तीनों ट्राइंगल्स का आप नाम लिखेंगे जिसमें एंगल एस आ रहा है। Yes, what is your homework? Do exercise 5.4 in your fair notebook. If there is any query, any doubt, then ask from me.